Hello, welcome back once again in Basic Electronics practical session. So in our last practical session, we have completed the topic of clipper circuits. So we have done the simulation of all the types of clippers, that is positive clipper, negative clipper circuit, and in the end also we have performed the combinational bias clipper circuit. Now in this today's practical session, we are going to see the simulation of clamper circuits also. So in today's practical session, we are going to cover the practical number 16, 17 and 18. So as you can see, your practical number 16 and 17 is used for build a positive clamper on breadboard and test the performance. So this 16 and 17 is used for clamper clamper circuit. So we have to test the performance of clamper circuit. So this clamper circuit is of which type? Can anybody tell me while seeing this diagram? So this clamper circuit is positive clamper, negative clamper, or which one? Positive clamper. Yes, it is also written in your figure also, positive clamper. So what do you mean by positive clamper? The positive clamper means what? The waveform will be shifted in the upward direction. So the circuit which shifts your waveform in the upward direction, that particular circuit is known as positive clamper circuit. And similarly, the circuit which shift your waveform in the downward direction, so that circuit is known as negative clamper circuit. So this is the circuit diagram of positive clamper circuit. As you can see in this positive clamper circuit, the diode direction is in upward direction parallel to the load, and at the side of input one capacitor is placed. So the major role is of capacitor only, because the purpose of capacitor is to charge and discharge. So that's why the output is double, because of this capacitor charging at full peak voltage Vm. So it store its peak voltage Vm, and in the second half negative half cycle this voltage add with the input. So that's why the output will become 2 Vm. So this is the concept of clamper circuit. Why your waveform is shifting in the upward direction? Because output is double with the help of this capacitor storage peak voltage. So this capacitor plays a very major role in the clamper circuit. So this clamper circuit shift your waveform in the upward direction. So this is a positive clamper circuit. So first we have to see the output of this positive clamper circuit, and in your observation it has asked to write the input voltage and output voltage. Just you have to write down the input voltage and output voltage. So for this particular practical also we are going to see the simulation. So we are using multi-sim simulation. So in the multi-sim simulation, same type of circuit we are going to draw and observe its input. What is the input we are applying and what is the output we are getting. So both the things we are going to verify properly. So as you know, I am preferring which simulation? This multi-sim simulation. So what I have written in for search, just I have written clamper circuit simulation. So while you are searching the clamper circuit simulation on your search bar window, so you are able to see this particular waveform of by default circuit of this clamper circuit. So this is the by default clamper circuit which is available to you in your multi-sim online simulation. Now we have to adjust this circuit to the circuit which is given to you in your practical. So the circuit which is given to you in your practical is just a capacitor, one single capacitor at the input, and in parallel to the load upward direction diode, and this is the load resistor. So we are going to redraw the same circuit exactly which is given in our manual. So I am going to this simulation. So what I required, I don't require this particular battery supply as of now. So I am removing this. Just I have to do connection. Now I think your circuit is completed with the circuit which is given to you in your manual. So diode direction is in this direction only, upward direction. This is resistor, load resistor, and one capacitor at the input. So I think your circuit is completed now. Capacitor 1 microfarad, diode in the upward direction. Load resistance value is given very high, 500 kilo ohm. Please adjust it. You try to keep this resistor to 10 kilo ohm only, or you can also adjust to 1 kilo ohm.
We are not keeping so much high value. So 1000 ohm is nothing but 1 kilo ohm. And one more thing, we are not using this voltage and ampere meter. We are just simply using voltage meter only. So I am removing this and going in the voltage section, voltage. Similarly, I am also taking one more voltmeter for measuring the input also, because I have to see the waveform of both input and output. That's why I am using two voltmeter. One is connected at the input side for measuring input voltage, and one is connected on the output load side to measuring the output voltage. So now I think so your circuit is completed. Also, you can do one more adjustment. This sine wave of 5 volt 1 kilohertz, you can adjust its frequency also to some high value, because 1 kilohertz will give you only one cycle. So in spite of getting only one cycle, adjust it to 5 kilohertz so that you will get at least 5 cycles. So 5 kilohertz, 5 volt. So input is 5 volt, means 10 was 10 volt peak to peak. So 5 volt in single peak, 10 volt peak to peak. So what is the output now you are getting? You have to measure the output. ठीक है, बात समझ में आपको? सर्किट क्लियर है? तो जैसा सर्किट आपके मैनुअल में दिया हुआ था, ये पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट का, वो पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट का एग्जैक्ट डायग्राम हमने मल्टी सिम सिमुलेशन में ड्रॉ किया है। इनपुट में कैपेसिटर, ये डायोड, ये लोड रजिस्टर, और इनपुट को प्रॉपर्ली एडजस्ट किया है हमने। 10 वोल्ट पिक टू पिक दिया हुआ है। अब ये किस तरीके से आउटपुट क्लैम्प होकर आउटपुट में मिलता है। अब आपको आउटपुट कहाँ पे मिलेगा? ये इनपुट 5 वोल्ट जो है, तो आपको आउटपुट यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, कितने पे मिलेगा? अभी आपको आउटपुट कितने में मिलना चाहिए? या आप इनपुट 5 वोल्ट पे दे रहे हो तो आउटपुट आपको कितने पे मिलेगा? ये सर्किट से पॉजिटिव में क्लैम्प होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में क्लैम्प होगा। 5 वोल्ट का डबल होके कितने वोल्ट पे मिलेगा? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट पे। ओके, वेरी गुड। रन करते हैं हम लोग। रन करके अभी इसका वेवफॉर्म ऑब्जर्व करेंगे। सो ऑल ऑफ यू गेटिंग योर वेवफॉर्म? ठीक है, बात समझ में आई? ये आपका वेवफॉर्म समझ में आ रहा है आप लोग को? ये वेवफॉर्म है, पिक टू पिक आपको दिख रहा है इधर पे। तो इनपुट आपका कितना है? पॉजिटिव में 5 वोल्ट, नेगेटिव में -5 वोल्ट। पिक टू पिक कितना हो गया? 10 वोल्ट। ये आपको जो ब्लू में वेवफॉर्म जो दिख रहा है, ये ब्लू का जो वेवफॉर्म है, ये कौन सा वेवफॉर्म है? इनपुट वेवफॉर्म। क्योंकि आप स्कीमेटिक में देखोगे तो इन योर स्कीमेटिक द ब्लू वन वोल्ट मीटर इज यूज फॉर इनपुट, और ये आपका क्या है? आपका आउटपुट। तो देखो यहाँ पे भी आपको वोल्टेज की रीडिंग नजर आ रही होगी। तो इनपुट में आपका कितना है? 4.99। तो आउटपुट में आपको कितना मिल रहा है? उसका नियर अबाउट डबल होके मिल रहा है, 8.9031। तो पॉजिटिव में क्लैंप हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव में आपका आउटपुट क्या हो रहा है? क्लैंप हो रहा है। नजर आता है आपको? तो इट इज दिस वेवफॉर्म शिफ्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये वेवफॉर्म आपका पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हुआ है, अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। तो दिस इज योर क्लैंपर सर्किट। अब यहाँ पे मैक्सिमम जो पीक वोल्टेज आपको जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? यहाँ पे आपको कितना नजर आ रहा है? 8.9। तो मैं बताया आपको एग्जैक्टली आपको पूरा 10 वोल्ट पे तो नहीं रीच करेगा, लेकिन आपको नियर अबाउट वो वैल्यू में दिखाई दे रहा है। तो इनपुट का 5 वोल्ट है, तो आउटपुट में क्लैंप होकर आपका यहाँ पे कितने में दिख रहा है? 8.9। क्यों? बिकॉज थोड़ा नीचे से नेगेटिव पोर्शन में भी नीचे दिया हुआ है ना। अगर आप पीक टू पीक कंसिडर करोगे तो यू विल गेट समथिंग टू बी अराउंड 9.5 के करीब में मिलेगा। अगर आप इसका पीक टू पीक कैलकुलेट करो, मैं आपको पीक टू पीक कैलकुलेट करने की कोशिश कराता हूँ। हाउ वी आर गोइंग टू मेजर द पीक टू पीक। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ट्रैक में जाते हैं। हाँ, तो ट्रैक में जाके आप इधर पे पीक टू पीक कैलकुलेट कर सकते हो उसका। तो मैं इसका पीक टू पीक कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे इसको पीक में रखा, यहाँ पे इसको पीक में रखा। तो डेल्टा वाई कितना आपको नजर आ रहा है? यहाँ पे नजर आ रहा है डेल्टा वाई -9.6364। तो ये पर्टिकुलर पीक टू पीक कितना है आउटपुट वोल्टेज का?
पीक टू पीक आपको वोल्टेज कितना नजर आ रहा है, 9.6364 नियर टू द 10 वोल्ट। हमने यही किया है ना, इनपुट में जो दिया उसके हिसाब से आउटपुट में आपको मिल रहा है। तो आप पीक टू पीक इस तरीके से मेजर कर सकते हो। तो ये पीक टू पीक आपको मेजर करके यहाँ पे नजर आ रहा होगा -9.63064। तो इनपुट का जो आपने दिया हुआ था वही आउटपुट में, लेकिन आपको ये ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता नजर आ रहा है, पॉजिटिव हाफ में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपका क्या था, कौन सा सर्किट था, पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट। तो पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट में वेवफॉर्म कहाँ पे शिफ्ट होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन में आपका ये शिफ्ट हुआ है। फिर इसी के साथ आपका दूसरा यहाँ पे सर्किट क्या दिया हुआ है, आपको खाली क्या लिखना रहेगा ये ऑब्जर्वेशन में। ये ऑब्जर्वेशन में आपने क्या लिखना रहेगा, आपको इनपुट वोल्टेज क्या दिए थे 5 वोल्ट, तो आउटपुट वोल्टेज आपको कितना मिला वो लिखना है। अगर फॉर एग्जांपल इनपुट वोल्टेज आपने 5 वोल्ट दिया था तो आउटपुट वोल्टेज आपको कितने पे मिला है आपको, तो आउटपुट वोल्टेज आपको यहाँ पे लिखना होगा 9.6। अगर इनपुट वोल्टेज पीक टू पीक लिखते हो 10 वोल्ट पीक टू पीक, तो आउटपुट वोल्टेज आपको 9.63 वोल्ट मिला, वो लिखना होगा। और यहाँ पे कमेंट में क्या मेंशन करना होगा, कमेंट में मेंशन ये करना होगा कि वेवफॉर्म शिफ्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इनपुट 5 वोल्ट था तो आउटपुट आपका 8.9 आया या 9 आया, वो आप लिख के यहाँ पे कमेंट कर सकते हो कि द वेवफॉर्म इज शिफ्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। पॉजिटिव क्लैम्पर था ये। तो ये क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या बोलता है, रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट फॉर 4 वोल्ट पीक टू पीक एंड ऑब्जर्व इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर एंड ऑब्जर्व इनपुट एंड आउटपुट। तो ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन देता है, तो आपको ये चीज उसके थ्रू भी चेक करना है, आप खुद से ट्राई करना 4 वोल्ट पीक टू पीक देके कितना होता है, और अगर कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करोगे या लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करोगे तो क्या वेवफॉर्म में चेंजेस ऑब्जर्व होगा, उसको ऑब्जर्व करना और उसके थ्रू अंडरस्टैंड करना व्हाई इट इज सो, ये किस लिए हो रहा है। कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाओगे तो डेफिनेटली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पाथ बढ़ेगा, तो वो हिसाब से थोड़ा रिस्पॉन्स क्या होगा, स्लो होगा, स्लगिश होगा, जो रिस्पॉन्स में टाइम में आपको फर्क नजर आएगा। चार्ज तो उतनी वैल्यू पे ही करेगा, मैक्सिमम पीक वोल्टेज उतना ही रहेगा, लेकिन खाली क्या होगा, रिस्पॉन्स में थोड़ा सा फर्क होगा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टाइम क्या हो जाएगा उसका, थोड़ा बढ़ जाएगा कम हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटर वैल्यू। तो ये इसलिए आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोलता है, ये क्वेश्चन इसलिए दिया होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 16 या 17 एक्सपेरिमेंट नंबर था। इसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर जो 18 था वो क्या है आपका, बिल्ड नेगेटिव क्लैम्पर ऑन ब्रेडबोर्ड टेस्ट द परफॉर्मेंस। अब आपको नेगेटिव क्लैम्पर बिल्ड करने के लिए बोल रहा है और ऑब्जर्व द वेवफॉर्म। तो नेगेटिव क्लैम्पर के लिए खाली आपको करना क्या है, वेवफॉर्म का डायरेक्शन चेंज, सॉरी डायोड का डायरेक्शन चेंज कर देना है। डायोड का डायरेक्शन जो अभी अपवर्ड में था उसको किस में कर दो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दो। नाउ इट विल बी गोइंग टू शिफ्ट योर वेवफॉर्म इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये किस में शिफ्ट कर देगा, आपके वेवफॉर्म को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर देगा। तो सिंपली आपको खाली यहाँ पे करना क्या है, आपको आपके स्कीमेटिक में जाके ये जो डायोड का डायरेक्शन है उसको रिवर्स करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं इसको। ये डायोड को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ये जो डायोड है इसको प्लेस करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है, उसको कनेक्ट करता हूँ। सॉरी, सबसे पहले इसका डायोड का क्या करना पड़ेगा मुझे, डायरेक्शन, हाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन करना पड़ेगा। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये डायोड को मैंने प्रॉपरली प्लेस कर दिया, जैसा करना था मुझे प्लेस कर दिया। अब वही कंडीशन में मेजर करता हूँ। अभी आपको डायोड का, सॉरी आपकी वेवफॉर्म कहाँ पे शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जस्ट रन करता हूँ मैं, मैंने रन किया है, वेवफॉर्म को ऑब्जर्व करते हैं। नाउ यू आर एबल टू सी द वेवफॉर्म। अब आपको जो ग्रीन वेवफॉर्म है वो कहाँ पे शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है, यू आर एबल टू ऑब्जर्व कहाँ पे शिफ्ट हुई है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है आप लोग को। मैं इसलिए थोड़ा नीचे किया उसको ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर कर पाऊँ। तो ये इनपुट था आपका +5 वोल्ट -5 वोल्ट। अभी आपका आउटपुट किधर पे चेंज हुआ है, ये आपका पॉजिटिव पिक जो दिख रहा है वो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव अपवर्ड साइड डायरेक्शन में दिख रहा है। नेगेटिव पिक आपको यहाँ पे दिख रहा है -8.80 -8.89। आर यू एबल टू सी। तो पिक टू पिक जो है इसका भी वही है -9.593, लेकिन अब जो वेवफॉर्म है वो कहाँ पे शिफ्ट हुई है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
पहले से पहले केस में कहा था वेवफॉर्म कहाँ पे शिफ्ट हुई थी, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब जो वेवफॉर्म जो शिफ्ट हुई है वो कहाँ पे शिफ्ट हुई है, इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए इसको कौन सा क्लैम्पर बोलते हैं, नेगेटिव क्लैम्पर बोलते हैं। तो पॉजिटिव क्लैम्पर था आपका, ये क्या हो गया, नेगेटिव क्लैम्पर। ऑल ऑफ यू गेटिंग, समझ में आ रहा है आप लोगों को, अंडरस्टैंड हो रहा है क्या? Yes, sir. ये नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट हम लोग ने ड्रॉ किए। अब इसके अलावा हम लोग ने क्या क्या ड्रॉ किए थे वो चीज आप इधर पे परफॉर्म कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। याद होगा आप लोगों को मैंने असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन दिया था इससे रिलेटेड। असाइनमेंट का क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम लोग ने एक सर्किट ड्रॉ किए थे जो क्या कर रही थी, कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट कर रही थी, क्लैम करना था उसको एट अ वोल्टेज 7 वोल्ट। क्वेश्चन याद आ रहा है Yes, आप लोगों को? sir. Yes, sir. वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था कि हम लोगों को वेवफॉर्म को क्लैम करना है कितने के हिसाब से, 7 वोल्ट के हिसाब से। और इनपुट में पीक टू पीक कितना दिए थे हम लोग ने, 10 वोल्ट का पीक टू पीक दिए थे। तो अगर उसको पॉजिटिव साइड में क्लैम करना है तो सबसे पहले तो पॉजिटिव क्लैम्पर बनाना पड़ेगा, रीड्रॉ करना पड़ेगा, पॉजिटिव क्लैम्पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं स्केमेटिक में आता हूँ वापस से, मैं अभी क्या करता हूँ, पॉजिटिव क्लैम्पर पे चले जाता हूँ, पॉजिटिव क्लैम्पर पे। तो पॉजिटिव क्लैम्पर पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टॉप करता हूँ, वापस से अपना जो पुराना था वहां पे आता हूँ। ठीक है, ये अपना पॉजिटिव क्लैम्पर है, ओके, जैसा था। और लेकिन अभी खाली यहाँ पे क्या करना है, मुझे डीसी सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो मुझे डीसी सप्लाई लेना पड़ेगा। तो डीसी सप्लाई कहाँ से ले सकता हूँ, यहाँ पे दिखेगा मुझे डीसी सप्लाई, कहीं पे है डीसी सप्लाई। डीसी वोल्टेज, यस, यहाँ पे आपको सोर्सेस में नजर आएगा डीसी वोल्टेज। तो ये डीसी सोर्स को लेके आता हूँ यहाँ पे, खाली प्लेस करना है, कनेक्ट करना है। ये कनेक्शन को यहाँ से रिमूव करो, इसको प्लेस करो। ओके, तो ये कनेक्ट कर दिया मैंने। अब आपको जो डीसी क्लैम करना था वो कितने वोल्ट पे करने का था, 7 वोल्ट। मैंने जो क्वेश्चन दिया था आपको, इनपुट पीक टू पीक दिया हुआ है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट पीक टू पीक दिया हुआ था। और आपको उसको वेवफॉर्म को शिफ्ट करवाना था एट अ आउटपुट ऑफ +7 वोल्ट। 7 वोल्ट के हिसाब से आपको क्लैम करना था। तो ये बैटरी का सप्लाई कितने वोल्ट पे करना पड़ेगा आपको, इसका मतलब कितने पे करना पड़ेगा, 7 वोल्ट पे करना पड़ेगा। तो इसको मैं 7 वोल्ट करता हूँ, 7 वोल्ट पे एडजस्ट कर दिया। और इनपुट पीक टू पीक कितना बोला था उसने यहाँ पे, 20 वोल्ट पीक टू पीक। तो सिंगल पीक में कितना रहेगा, 10 वोल्ट। तो सिंगल पीक में 10 वोल्ट, तो मतलब पीक टू पीक कितना हो गया, 20 वोल्ट। तो अब आपको आउटपुट कितने पे मिलेगा, 10 में जो पॉजिटिव पीक है वो कितने पे मिलेगा, अभी आपको पॉजिटिव पीक कितने पे मिलेगा, नेगेटिव पीक कितने पे मिलेगा। ये वेवफॉर्म, ये सर्किट का वेवफॉर्म 27. 27 पे आपको पॉजिटिव पीक मिलेगा। और नेगेटिव पीक कितने पे मिलेगा, 7. 7 पे मिलेगा। वेरी गुड। तो ये हम लोग ने, मैंने असाइनमेंट का क्वेश्चन आपको दिया था, आपको डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन टास्क दिया था, टू ड्रॉ द सर्किट विच क्लैम्स योर आउटपुट एट अ पॉजिटिव 7 वोल्ट फॉर अ इनपुट 20 वोल्ट पीक टू पीक। तो 20 वोल्ट पीक टू पीक इनपुट के लिए आपको आउटपुट में चाहिए +7 वोल्ट के हिसाब से क्लैम करना। तो ये सर्किट हम लोग ने उसके हिसाब से ड्रॉ किए थे, और वेवफॉर्म को अभी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके सामने वेवफॉर्म को दिखाता हूँ, लेके आता हूँ। ये वेवफॉर्म आपका आया, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, पॉज करता हूँ। अब आपको इधर पे ऊपर दिखाता हूँ। पहली बात तो ये इनपुट देख लो आप लोग, ये आपका इनपुट ब्लू का वेवफॉर्म है। तो इनपुट पॉजिटिव पीक कहाँ पे, +10 पे है। नेगेटिव पीक कहाँ पे, -10 पे है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है रीडिंग में। तो ये -10 पे है, +10 पे है। अब इसका देखिए आउटपुट वेवफॉर्म देखो। तो इसका पॉजिटिव पीक आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, +24, क्योंकि थोड़ा सा देखो इधर पे नेगेटिव पीक नीचे माइनस में दिया हुआ है 6.22। इसको कितने पे चाहिए था अपने को, 7 वोल्ट पे चाहिए था। तो 7 वोल्ट के बदले में यहाँ पे कितने पे नजर आ रहा है आपको, 6.277।
और पॉजिटिव पीक आपको 27 वोल्ट पे चाहिए था, तो इट इज शोइंग समथिंग टू बी नियर वैल्यू 24.753। देखो अब ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा वैल्यू डिफर करता है, लेकिन थियोरटिकल जो आइडियल वैल्यू है जो हम लोग ने अंडरस्टैंड किए थे, वो आइडियल वैल्यू क्या अंडरस्टैंड किए थे कि आपका पॉजिटिव पीक कितने पे रहेगा 27 पे, और नेगेटिव पीक कितने पे रहेगा 7 पे। तो यहाँ प्रैक्टिकली थोड़ा सा परफॉर्म करने में थोड़ा सा 1-2 वोल्ट का आपको चेंज नजर आ रहा है। ये 27 के बदले में आपको यहाँ पे कितना शो कर रहा है 24.753, और इंस्पेक्ट ऑफ ये 7 आपको यहाँ पे कितना शो हो रहा है 6.22। क्योंकि ये थोड़ा सा जब नीचे जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी ना। इसके लिए ऊपर वाली वैल्यू भी क्या दिखा रहा है, कम दिखा रहा है। ये नीचे थोड़ा कम जा रहा है 6.22, एक्चुअल वैल्यू इस पे इसको कितने पे होना चाहिए था 7 वोल्ट पे होना चाहिए था, और ये वैल्यू आपका एग्जैक्टली कितने पे होना चाहिए था +27 पे होना चाहिए था। तो इट इज शोइंग टू बी मैक्सिमम पीक वैल्यू 24.753। लेकिन मतलब क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो चीज हम लोग ने थियोरेटिकल स्टडी की है तो प्रैक्टिकली वो चीज भी हम लोग को यहाँ पे समहाउ मेजर करने को मिल रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, जो हम लोग ने थियोरी में पढ़े थे। तो ये सिमुलेशन के थ्रू मैं आपको वो थियोरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिकल के थ्रू रिलेट करने की कोशिश करा रहा हूँ। तो जो आपने थियोरेटिकल में पढ़े थे कि ये कैसे क्लैम करता है, क्या करता है, तो ये जो सर्किट आपने ड्रॉ किया हुआ है, ये जो सर्किट आपने ड्रॉ किया है, पॉजिटिव क्लैम्पर को क्लैम करना है एट अ +7 वोल्ट, तो आपको एक्सटर्नल डीसी सप्लाई लगाना पड़ता है। जितने के अमाउंट से आपको क्लैम कराना है, 7 वोल्ट के हिसाब से क्लैम कराना है तो 7 वोल्ट कर दो, 5 वोल्ट के हिसाब से करना है तो 5 वोल्ट लिख दो। तो ये बैटरी लगा के आप उतने के अमाउंट के ऊपर से आप क्लैम करना चालू करोगे, यानी उसके ऊपर से क्लैम करेगा। तो ये 5 वोल्ट 7 वोल्ट है जो आपका क्लैंपिंग अमाउंट है, और ये पॉजिटिव में ये डायोड का डायरेक्शन यूज करोगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लैम्प करेगा। तो वो सेम चीज आपको इधर पे अभी ऑब्जर्व हो रही है। तो जो अमाउंट में मैं यहाँ पे चेंज करते जाऊंगा वो अमाउंट के हिसाब से आपका इधर पे वेवफॉर्म ऑब्जर्व होगा, चेंज होगा। तो ऑल ऑफ यू गेटिंग ना, अंडरस्टैंडिंग ना, जो हम लोग पढ़ रहे थे अपने थियोरिटिकल में, थ्योरी नॉलेज में, तो उसको प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पे रिलेट किया विद द हेल्प ऑफ दिस डायोड क्लैम्पर सर्किट, पॉजिटिव क्लैम्पर विद पॉजिटिव बायस। ये कौन सा सर्किट है, पॉजिटिव क्लैम्पर विद पॉजिटिव बायस। यहाँ पे पॉजिटिव बायस दे रहे हैं पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट में। तो आपका 27 है आना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकली आपको 24.593 दिखा रहा है, और यहाँ पे आपका नेगेटिव जो पीक है वो आपका कितने पे आना चाहिए था 7 वोल्ट, यहाँ पे कितने पे दिख रहा है 6.22। तो समथिंग हम लोग नियर टू द वैल्यू तक पहुंच रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्लियर है ये? यस सर। तो ये चीज जो था आपका इधर पे वही पूछा, इनपुट वेवफॉर्म कितने पे दिया, आउटपुट वेवफॉर्म कितने पे मिला। तो अगर इनपुट वेवफॉर्म आपने 5 वोल्ट पे दिया था तो आउटपुट वेवफॉर्म आपको यहाँ पे कितने पे मिल रहा है -9.5 पे मिल रहा है। तो आपको इस तरीके से लिखना रहेगा, इनपुट आपने 5 वोल्ट दिया था, आउटपुट आपको मिला -9.5, और वेवफॉर्म में क्या, वेवफॉर्म में ड्रॉ करना रहेगा। ऐसा ड्रॉ करने के लिए बोला है तो वेवफॉर्म, इनपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करो, नीचे आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करो, कमेंट में मेंशन करो वेवफॉर्म इज शिफ्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव क्लैम्पर। हाँ, क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी आपको पहुंचा चुका हूँ, आपको करना रहेगा। तो ये था आपका आज के प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्या था, क्लैम्पर सर्किट जो हम लोग का बाकी था, सेकंड चैप्टर का हिस्सा था। क्लिपर सर्किट हो चुका था, क्लैम्पर सर्किट भी मैंने आज कवर कर दिया। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग थर्ड चैप्टर से रिलेटेड के प्रैक्टिकल कवर करेंगे, बीजेटी से रिलेटेड। तो ये आज के प्रैक्टिकल में इट इज सफिशिएंट फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर टुडेज प्रैक्टिकल सेशन। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर दिस प्रैक्टिकल सेशन। किसी को कुछ डाउट है, कुछ है पूछना तो पूछ सकता है, अगर कुछ नहीं समझा है तो। है किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है? नो सर। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ये मैं ये प्रैक्टिकल का स्टॉप करता हूँ।